Welcome to our channel Anuja Dream Project underscore 11. This project is project for 11th standard. Subject is business studies and the topic is hindrance of industry. In my last video, project 3 of Anuja Dream Project underscore 11, I had explained to you about hindrances of commerce. As I promised to you, I will be explaining to you about hindrances of industry in this video. As in the last second video, I explained you about the business and I said that business is equal to industry plus commerce. In this video, I will be explaining you about hindrances of industry. What is hindrances of industry? Industry refers to economic activities which are connected with conversion of resources into useful goods. The term industry is also used to mean group of firms producing similar or related goods. Industry may be divided in three broad categories, namely primary, secondary, and tertiary. In my last video, project 3 of Anuja Dream Project underscore 11, I had explained to you about hindrances of commerce. As I promised to you, I will be explaining to you about hindrances of industry in this video. As in the last video, I explained you about business and I said that business is equal to industry and commerce. In this video, I will be explaining you about hindrances of industry. What industry is? Industry refers to economic activities which are undertaken with conversion of resources into useful goods. The term industry is also used to mean group of firms producing similar and related goods. Classification of business activities. Business activities can be classified in two terms, industry and commerce. And industry can be classified in three terms, primary industry, secondary industry, and tertiary industry. First, primary industry. Primary industries are those that harvest or extract raw material from nature, such as agriculture, oil and gas extraction, logging and foresting, mining, fishing, and trapping. A secondary industry transforms raw material from primary industry into finished goods through manufacturing, processing, and construction. Also known as industrial or manufacturing sector, it adds value to raw material, producing items like cars, electronics, and clothing for consumer and other business. Tertiary industry or service industry sector encompasses economic activities that provide intangible service rather than a physical goods such as healthcare, education, financial service, retail, and entertainment. This sector generates value by fulfilling human needs and desire and is a significant source of employment contributing to the country's GDP and social infrastructure. अब मैं आपको हिंड्रेंसेस ऑफ इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगी। बोथ द टर्म्स हिंड्रेंस एंड इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको अनुजय ड्रीम प्रोजेक्ट के टॉप अंडरस्कोर 11 के टॉपिक हिंड्रेंस ऑफ कॉमर्स में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अनुजय ड्रीम प्रोजेक्ट अंडरस्कोर 11 के टॉपिक हिंड्रेंसेस ऑफ कॉमर्स की वीडियो को ज़रूर देखें। हिंड्रेंस ऑफ इंडस्ट्री. Hindrance of industry can be divided in 6 forms. First is economic and financial hindrances. Second is operational hindrances. Third is technological hindrances. Fourth is environmental hindrance. Fifth is regulatory hindrances. And sixth is demographic hindrances.
In general language, the challenges which occur in terms of money and related to economic factors of the region are known as the economical and financial hindrances. Economical and financial hindrances, the external economic factor and condition that influence industry, consumer and government within the specific region. इसका अर्थ ये है कि the challenges which occur in the form of money and are related to money and also related to the economic factors which are recession, inflation, deflation, to which the industrial activities gets upset is known as economical and financial. General language challenges which occurred in the form of tax bills, crisis in problem, taxations, debts, bills, payments, loss, and inflation, deflation, demand, supply, etc. are known as economical and financial hindrances. पहला हिंड्रेंस है मार्केट फेलर। इसका अर्थ ये है कि कभी कभी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है और मार्केट में दिया जाता है बेचने के लिए, वो मार्केट में फेल हो जाता है, मतलब उसकी कंज्यूमर्स को आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है क्वालिटी प्रोडक्ट में लैक कैपिटल। इसका अर्थ है कि ज़्यादा क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता होती है। ज़्यादा कैपिटल होगा तो हम उस प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी दे पाएंगे। हाई टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट, हाई टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट पे हाई टैक्सेस लगाएंगे तो नॉर्मल कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं, क्योंकि वो आवश्यकता से ज़्यादा ही महंगे होंगे। Operational hindrances. An operational hindrance refers to a situation in which a system operates, including interaction with other system, physical attributes and human operators. Operational hindrance का सिंपल और सरल अर्थ है कि वो बाधाएं जो एक इंडस्ट्री को रन करने के लिए डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, उन्हें ऑपरेशनल हिंड्रेंसेस कहा जाता है। Operational management include planning, overseeing, designing, control, production, strategy, input, output, and other day-to-day activities to run an industry. ऑपरेशनल हिंड्रेंसेस को 3 तरीक़ों से समझा जा सकता है। पहला हाई कॉस्ट। जैसे कि मैंने बताया तो ऑपरेशनल हिंड्रेंसेस और ऑब्स्टिकल्स वो होते हैं जो इस इंडस्ट्री के स्मूथ रनिंग पे इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हमारी इंडस्ट्री का रनिंग ही हाई कॉस्ट होगा तो ये नुकसानदायक होगा इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, क्योंकि ये एक्टिविटी रोज़ परफॉर्म की गई और रोज़ परफॉर्म कर गई एक्टिविटीज़ अगर हाई कॉस्ट हो जाएंगी तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। दूसरा रेसिस्टेंट टू चेंज। रेसिस्टेंट टू चेंज मीन्स अडेप्टेशन टू चेंज। अगर रोज़ एक्टिविटीज़ के तरीके, इंडस्ट्री को रन करने के तरीके बदले जाते रहेंगे तो वर्कर इंडस्ट्री को रन करना नहीं सीख पाएंगे और ये इफ़ेक्ट करेगा प्रॉफिट पे। कॉम्प्लेक्सिटी एंड टेक्निकल इश्यूज़। कॉम्प्लेक्सिटी एंड टेक्निकल इश्यूज़ अगर रोज़ होते रहेंगे इंडस्ट्रीज़ में तो इस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कैसे होगा। रोज़ स्टाफ सिर्फ मशीनरीज को बनाने में ही लगे रहेंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा और इससे नुकसान। Technological and digital hindrances. It refers to science and technology which brings obstacle in industrial activities. इसका अर्थ ये है कि वो ऑब्स्टिकल जो टेक्नोलॉजी और डिजिटल तरीके से पैदा होते हैं उन्हें टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल हिंड्रेंसेस कहा जाता है।
टेक्निकल एंड डिजिटल हिंड्रेंसेस को 3 तरीके से समझा जा सकता है। पहला, प्राइवेसी एंड कंसर्न, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। दूसरा, मेंटल हेल्थ एंड डिस्ट्रैक्शन। एंड तीसरा, डिपेंडेंस एंड रिड्यूस स्किल्स। डिपेंडेंस एंड रिड्यूस स्किल्स का मतलब होता है कि इन टेक्नोलॉजी के आने से जो लेबर होता है वो उसके स्किल्स कम हो जाते हैं, वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो जाता है और इससे नुकसान होता है जब टेक्नोलॉजी नहीं होती है। इसीलिए ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए वर्कर्स को। दूसरा है मेंटल हेल्थ एंड डिस्ट्रैक्शन। इंडस्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी मशीनों के रन करने से बहुत ही ज़्यादा मेंटल हेल्थ को प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें बहुत ही आवाज़ करती हैं जिससे दिमाग, सिर दर्द की प्रॉब्लम और माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम पैदा होती है। प्राइवेसी एंड कंसर्न, ये हिंड्रेंस डिजिटल हिंड्रेंस से रिलेटेड है, क्योंकि डिजिटल होने से जो इंडस्ट्रियलिस्ट की प्राइवेसी होती है वो ख़त्म हो जाती है। हाँ, और सिक्योरिटी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। Environmental hindrances, the natural environment of place encompassing Earth's surface, atmosphere, landforms, water bodies, natural resources and biological system। इसका अर्थ ये है कि जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट, हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है, वेदर कंडीशन होता है, जो हमारे इंडस्ट्री के वर्किंग में अफेक्ट करते हैं, उन्हें एनवायरमेंटल हिंड्रेंसेस कहा जाता है। एनवायरमेंटल हिंड्रेंसेस को भी 3 तरह से समझा जाता है। नेचुरल हैज़ार्ड। नेचुरल हैज़ार्ड्स मीन्स कैलेमिटीज़, जो हमारे वर्ल्ड में इस समय हो रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, उससे हमारे बिजनेस को फ़र्क पड़ता है। जैसे हम किसी की दुकान रह जाती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बिगड़ जाती है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट इन द मार्केट कम हो जाती है। रिसोर्स डिप्लेशन मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिलते हैं हम उसका यूज़ करते हैं इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए, लेकिन अगर हम उन रिसोर्सेज को यूज़ करते जाएंगे तो वो कम पड़ जाएंगे और फिर फ्यूचर में उनका डिप्लेशन हो जाएगा और हमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। हेल्थ रिस्क, यूजुअली जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, उन्हें इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, तो उनसे जो वर्कर्स का जो हेल्थ है वो अफेक्ट होता है। Regulatory hindrances, those obstacles which are a set of rules and laws which everyone must follow। Regulation means हम सब जानते हैं कि laws and rules होते हैं, वो बाधाएं जो rules and regulation के तौर पर इंडस्ट्री को प्रभावित करती हैं, उन्हें रेगुलेटरी हिंड्रेंसेस कहते हैं। रेगुलेटरी हिंड्रेंसेस को 3 तरीके से समझा जा सकता है। पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन मतलब होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन किसी भी कार्य में थोप देंगे तो उसको एडमिनिस्ट्रेट करना, उसको रन करना एक बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है। दूसरा, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमेशा वक्त पे चेंज किया जाएगा तो ये अनसर्टेनिटी पैदा करता है प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी और उसकी रिक्वायरमेंट इन द मार्केट। स्लोअर ग्लोबल कंपटीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन कंपटीशन को कम कर देते हैं। वो ऐसे कि अगर बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन हो जाएंगे तो इंसान परेशान होकर कॉम्पिटिटिव रहेगा ही नहीं। Demographic hindrances. It refers to statistical characteristics of human population such as size, age, gender, income and education। सीधी बातों में समझा जाए तो इसका अर्थ होता है कि
ऐसे फैक्टर्स जो हमारी पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करते हैं वो सीधे और सरल तरीके से डेमोग्राफिक हिंड्रेंसेस होते हैं। डेमोग्राफिक हिंड्रेंसेस के 3 हिंड्रेंस है। पहला है रिस्क ऑफ इनएक्यूरेट असम्पशन। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास सही सूचना नहीं होगी पॉपुलेशन से रिलेटेड तो रिस्क हो सकता है कि हम गलत इंफॉर्मेशन से गलत इंडस्ट्री को रन पाएँ। कॉम्पिटिटिव रिस्क का मतलब होता है अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी और कंपटीशन बढ़ जाएगा तो लोग कंपटीशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे और बिजनेस पे कम ध्यान देंगे और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत ही रिस्क हो जाएगा। रॉन्ग डेटा एनालिसिस ड्यू टू लार्ज वर्कफोर्स का मतलब है इंक्रीज इन अ वेरी मच अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम ज़्यादा वर्कफोर्स बढ़ गया तो ये चांसेस हो सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा गलत डेटा मिले जो हमारी इंडस्ट्री को रन करने के लिए हानिकारक हो। ग्राफिक हिंड्रेंसेस को भी 3 तरीकों में समझा जाए तो पहला है रिस्क ऑफ इनएक्यूरेट असम्पशन। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन की सही मात्रा और अगर हमें ना पता हो तो हमारा जो रिस्क है वो बढ़ जाता है कि हमें सही जानकारी नहीं है पॉपुलेशन की। कॉम्पिटिटिव रिस्क का मतलब है अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, क्योंकि कंपटीशन वही होता है जहाँ ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं और ज़्यादा आइडियाज़ होंगे तो ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। रॉन्ग डेटा ड्यू टू लार्ज वर्कफोर्स। जब वर्कफोर्स या पॉपुलेशन इतना बढ़ जाता है तो सही अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है और ये गलत अनुमान रॉन्ग डाटा प्रस्तुत करता है। So like, comment, share and subscribe our channel Anujay Dream Project _11.